हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली एनटीए ने आपका एग्जाम शेड्यूल आउट कर दिया था 2 days प्रायर, जिसमें दे हैव प्रोवाइडेड यू विद ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आपका कौन सा एग्जाम ऑनलाइन होगा एंड विच वन विल बी योर ऑफलाइन एग्जाम, मीनिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड OMR शीट 1। ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर लिटिल डिले इन दिस वीडियो बिकॉज आई वॉज वेरी मच ऑक्यूपाइड विद माई मिड सेम्स एंड असाइनमेंट्स एंड ऑल, एंड एज दे से better late than never। And there is a very big good news for all the CUET 2024 aspirants in the end of this video, so make sure to watch this video till the end. And yeah, without making any further delay, let's move into the video. So according to this notification, your exam is in the month of May, that is from 15th to 24 May 2024। and इस बार जो आपका CUET 2024 के लिए registrations आई हैं उसका number has approximately touched 14 lakhs, so you better be ready for the tough competition to get into DU। and as we all know कि जो आपके total subjects हैं this year is 63 and you are given with 45 minutes each for the most of them to attempt these test papers। but जो papers होते हैं जिसमें आपका practical component भी involved होता है उसमें you are given with 60 minutes। for example, your maths, your applied maths, economics, your accountancy, physics, chemistry and even general test। ठीक है, so now let's move on to the schedule of these test papers जो उन्होंने प्रोवाइड करे हैं इन Annexure 1 and 2। so first let's move on to the Annexure 1 and let's see हमारा कौन सा एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, शिफ्ट क्या है एंड उसकी टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, so Annexure 1 includes your test papers that are to be conducted in pen and paper, that is your offline mode। ठीक है, तो सबसे पहले तो let's see your 15th May 2024। इसमें you are having your 4 shifts। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा केमिस्ट्री, देन होगा आपकी शिफ्ट ब्रेक, देन इज बायोलॉजी, देन इंग्लिश एंड देन इज अ जनरल टेस्ट। ठीक है, 16th May में भी आपके पास 4 शिफ्ट ही हैं। फर्स्ट एग्जाम आपका होगा उसमें इकोनॉमिक्स का, देन हिंदी, देन फिजिक्स एंड देन इज अ मैथमेटिक्स। ठीक है, 17th May में आपके पास फिर से 4 शिफ्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट इज योर ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज एंड देन इज अकाउंटेंसी। बट इन 18th May यू आर हैविंग 3 शिफ्ट्स, उसमें आपका सबसे पहले तो होगा हिस्ट्री, देन पोल साइंस एंड देन इज अ सोशियोलॉजी। ठीक है, now let's move on to the Annexure 2 and to be honest I'm getting a little bit jealous over here while reading a schedule because you are getting shift breaks in between। this was not the case with us, we have to sit there for 3 hours straight and attempt back to back papers। suppose जैसे हमारा accountancy खत्म होता था साथ में हमारा business study शुरू, business studies खत्म होता था economics। सोचो कितना brainstorming होता था, कितना timing process होता था। but enjoy, आपको ये नहीं करना है, आपको breaks मिलेंगी in between। and इससे भी बड़ी good news है till the end, so make sure you are stick to this video till the end। and now let's see कि आपके कौन से पेपर ऑनलाइन होंगे। ठीक है, so Annexure 2 includes your test papers that are to be conducted in online mode, that is your computer based test। ठीक है, so first of all to 21st May 2024 में you are having your 3 shift। shift 1 में आपकी most of the languages like नेपाली, सिंधी, उड़ीसा and agriculture का पेपर है। ठीक है, shift 2 में you are having fine arts and संस्कृत का पेपर, shift 3 में psychology and fashion studies। ठीक है, now in 22 में there are also 3 shift। shift 1 में आपका computer science and informative practices का पेपर है, उसके बाद आपकी break है, then shift 2 में इट इज योर संस्कृत, एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, शिफ्ट 3 में आपको एंथ्रोपोलॉजी एंड लीगल स्टडीज का पेपर है। ठीक है, 24th May में यू आर ऑल्सो हैविंग 3 शिफ्ट, उसमें आपकी मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में फर्स्ट शिफ्ट आएंगी, सेकेंड शिफ्ट में भी लैंग्वेजेस ही है या इन्वायरमेंटल साइंस है, शिफ्ट 3 में भी आपकी लैंग्वेजेस ही है। ठीक है, सो दिस इज द ऑनलाइन मोड पेपर शेड्यूल। ठीक है, so now let's move on to the most awaited part of this video, that is the good news। CUET 2024 के बच्चों के लिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ही हटा दी है। आपको लग रहा होगा छोटी सी तो बात है, नॉर्मलाइजेशन ही तो है, बट आस्क प्रीवियस बैच स्टूडेंट, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था ना, अगर आपके रॉ स्कोर इतने हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाते थे, डिक्रीज हो जाते थे, एंड वो कुछ ही लकी बच्चे होते हैं जिनके अगर रॉ स्कोर इतना है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके इंक्रीज हो गए। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता था। ठीक है, एंड नाउ लेट मी टेल यू द मेजर डिफरेंस कि ऐसा क्यों उन्होंने इस बार नॉर्मलाइजेशन हटा दी है। ठीक है, सपोज अगर हमारा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम था पिछले साल या 2023 बैच है उसके कोई भी पिछले बैच में, ठीक है, सपोज बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है तो वो ऐसा नहीं होता था कि एक ही दिन में हो एंड उसी टाइम पे सबका सेम एग्जाम हो रहा हो। ठीक है, बट आपके जो डिफरेंट बैचेस बनते थे जैसे मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, एंड ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी एग्जाम आपका अलग ही आएगा, सेम तो नहीं आएगा। सो कभी पेपर ईजी आता था, कभी डिफिकल्ट आता था। सो
इन ऑर्डर टू गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी वो नॉर्मलाइज कर देते थे आपका स्कोर अकॉर्डिंग टू ऑल द बैचेस या शिफ्ट जितनी भी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर नॉर्मलाइज हो जाता था एंड उसका एक फॉर्मूला ही होता है जिसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। बट 2024 में उन्होंने क्या करा है कि एक ही शिफ्ट रखी है एंड वो एक ही एग्जाम होगा, हर जगह वो एक ही एग्जाम आएगा एंड इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन भी नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू एंड या दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।